Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most merciful and most beneficent. How are you, students? I hope you all are doing good. And this is the second lecture after midterm examination. And I hope you got the last lecture and you make yourself clear about the last lecture. And if you have any query regarding last two lectures I uploaded simultaneously, you may ask on my email ID, or you can share your views on the WhatsApp group. Okay, starting with the new chapter, that is chapter number 4, developing competitive advantage and strategic focus. From the very beginning, or from the very scratch, when we start this course, I emphasized on the topic of competitive advantage, that the whole marketing strategy or strategic marketing management revolves around the competitive advantage. जितना भी काम हम करते हैं या जितनी भी डिज़ाइनिंग करते हैं स्ट्रैटेजी की इन स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट, और वट एवर द सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स इन इट, like strategic management, like strategic finance, like strategic HR. These are the MPhil subjects that we taught in MPhil for MPhil students to develop the specific strategies, the advanced course level of each subject area. So इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का जो बेसिक पर्पज़ है, जिसके साथ एक वर्ड स्ट्रैटेजिक लगा हुआ है, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग, स्ट्रैटेजिक फाइनेंस, स्ट्रैटेजिक HR, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इसकी जो बेसिक रीज़न है वो टू गेट द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द बिजनेस, इन द इंडस्ट्री. दिस इज़ द बेसिक रीज़न दैट वी teach these subjects and we plan the whole scenario that revolves around the strategy. So हम अभी तक जितना पढ़ चुके हैं उसमें सिचुएशन एनालिसिस हम देख चुके हैं, जिसमें आपके कस्टमर, सप्लायर और इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस आप करते हैं. और ये चैप्टर भी स्टार्टिंग जो हो रही है बेसिकली आपको स्वॉट एनालिसिस से हम स्टार्ट करेंगे. सो इसका इंट्रोडक्शन में बताना ये ज़रूरी था कि ये जो दो वर्ड्स हैं आपके इस चैप्टर के, कि डेवलपिंग कंपैरेटिव एडवांटेज एंड स्ट्रैटेजिक फोकस, ये दोनों वर्ड्स आप इस चैप्टर में सीखेंगे कि हाउ वी कैन डेवलप कंपैरेटिव एडवांटेज और स्ट्रैटेजिक फोकस. और ये की एरियाज़ है व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो ये दोनों ही एक बेसिक रीजंस हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, या उस पर मेहनत करते हैं, या उस पर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी HR लगाते हैं, अपनी एफर्ट्स को पुट करते हैं. बिकॉज अल्टीमेटली द विनिंग सिचुएशन फॉर एनी बिजनेस और एनी रिटेल आउटलेट, होलसेल, डिस्ट्रीब्यूशन, whatsoever you are dealing with, the competitive advantage always leads towards the success of any business. So I hope you get the importance of this chapter. So please carefully observe these slides, and if you need to know something, so I am available for you people. Okay, just starting from the first topic that is very known of you, very well known about you, you very well known about this topic, that is SWOT, and we discussed about TOES as well, in which we analyze the external portion first, external part or external situation of the company. TOES में हम external attributes को पहले observe करते हैं, threats और opportunities को, जबकि SWOT में हम internal strength और weaknesses को पहले analyze करते हैं, then we move towards the external analysis. ये इसी तरह ही है जैसे आपने अगर कोई business start करना है तो आप पहले अपने इन्वेस्टमेंट को, अपनी करंट स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेसेस, इट मींस आपके पास कितना पैसा है और आपके पास कितनी HR है, कितनी स्किल्स है उस बिज़नेस को करने के लिए, वो आप पहले एनालाइज करते हैं. फिर आप बिज़नेस में जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट आर द बेसिक थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट आउटसाइड द कंपनी. So this is the basic concept of analyzing your company. ये बहुत ही इनिशियल स्टेज और बहुत ही कॉमन मेथड है आपके किसी भी बिजनेस की सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए. SWOT
और हर कंपनी इसको अडॉप्ट करती है. एवरी कंपनी नीड्स टू नो द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वीकनेसेस, इंटरनल स्ट्रेंथ्स, external opportunities and threats, to know the business current situation and upcoming situation in the future as well. So SWOT analysis is the widely used framework for organizing and utilizing the pieces of the data and information gained from the situation analysis. Widely used, it's a framework that is used by any company. If the company is in service industry or in the product industry, or I better make sure, or you people must know that what is the major difference between a service and product. कुछ स्टूडेंट्स को इस बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं वो क्लियर कर देता हूँ. जो सर्विस इंडस्ट्री होती है, दैट इज़ बेसिकली डीलिंग विद ओनली सर्विस, इंटेंजिबल सर्विसेज. लाइक if you go for the restaurant to have some dine in the restaurant, then the product you are thinking to purchase is the food. That is the product. But on the basis of the services that restaurant provide, like the lead time of the product towards your table, or the serving time of the food, is basically the core service that you analyze the quality or the service of that restaurant. कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप घर से कुछ फूड सोच कर जाते हैं खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में, बट उसकी सर्विस की वजह से, डिले सर्विस की वजह से आप उस रेस्टोरेंट में नहीं जाते दोबारा, बेशक उसका फूड कितना भी अच्छा हो. सो सर्विस एंड प्रोडक्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो इफ़ यू आर able to understand this difference, आपको आसानी होगी कि how to develop the strategic focus and competitive advantage in service industry as well as in product industry. Major differences मैं शायद आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ. जो प्रोडक्ट है वो एक टेंजिबल होती है और सर्विस इंटेंजिबल होती है. प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके आप लेटर सेलिंग कर सकते हैं, बाद में बेच सकते हैं, उसको स्टोर में रखा जा सकता है शेल्फ पे कि वो बना कर रख दी जाए, और जब कस्टमर आए उसको अपनी प्राइस को एनालाइज करके परचेज करके नीड को सेटिस्फाई कर ले. बट सर्विस के साथ ये पॉसिबल नहीं है. सर्विस प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम. ठीक है जी. थर्ड मेजर चीज़ है, द प्रोडक्ट क्वालिटी कैन बी मेंटेन्ड, whereas service quality cannot be maintained or consistent. For example, the quality that is decided for the Pepsi or Coke is similar after 70 to 80 years till now. But if I say the lecture delivered to you yesterday is similar for today, is not a correct answer for calculating the service quality. क्योंकि जो लेक्चर कल डिलीवर किया गया था आपको, अगर उसकी क्वालिटी आज के लेक्चर से डिफरेंट हो सकती है. हो सकता है उसका एनवायरनमेंट मेरे लिए सूटेबल ना हो रहा हो, और आज का एनवायरनमेंट मेरे लिए ज़्यादा फ्रेश है या सूटेबल है, तो उसके लेक्चर की डिलीवरी की जो क्वालिटी है वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छी आज के लेक्चर की होगी. सो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए कि प्रोडक्ट और सर्विस इंडस्ट्री के क्या डिफरेंस. सो कमिंग टू द टॉपिक, एक तो ये वाइडली यूज फ्रेमवर्क है, एंड टू मेजर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस दैट इन फर्स्ट सेंटेंस ही मेड, ऑथर मेड, अ वाइडली यूज फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग द पीसेस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन गेन्ड फ्रॉम द सिचुएशन एनालिसिस, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ते आए हैं. सिचुएशन एनालिसिस के बाद जो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी या डेटा आएगा, उसको ऑर्गेनाइज करना है. यानी कि हमने मैनेजमेंट में फंक्शंस पढ़े थे, जो मेजर पिलर्स हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. तो उसमें जो ऑर्गेनाइजिंग का पोर्शन है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप टास्क असाइन कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं. फर्स्ट फेज में प्लान होता है कि क्या बिजनेस होगा, इन विच बिजनेस वी आर इन एंड इन विच बिजनेस वी विल बी, व्हाट आवर बिजनेस विल बी. मिशन और विजन की बात कर रहा हूँ. ठीक है जी. तो उस सिचुएशन में आपकी जो प्लानिंग पर्सपेक्टिव है वो लीड करेगा या मूव कर जाएगा. फिर ऑर्गेनाइजिंग में आप हर बंदे को उसका काम समझाते हैं कि भाई सेल्स वाला क्या करेगा, प्रोडक्शन वाला क्या करेगा, सप्लाई, अगर आप होल सेलर के साथ डील कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए, रिटेल के साथ डील कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए.
So organizing is the system in which you assign the task to characters or the operations. तो इसमें भी यही बात कर रहा है कि जब हम SWOT एनालिसिस का टेक्निक यूज़ करते हैं तो सिचुएशन एनालिसिस से जो आपको डाटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है उसको आप ऑर्गेनाइज करते हैं एंड देन यू यूटिलाइज दैट इंफॉर्मेशन डाटा टू practically understand the internal strength and weaknesses and external opportunities and threats for the company. So ये सिचुएशन एनालिसिस के बगैर इस स्टेप पे आप नहीं आ सकते. अल्टीमेटली जो मैंने आपको समझानी थी बात, ये सिचुएशन एनालिसिस का जो चैप्टर है जो हमने पढ़ा है वो आपके पास डाटा इंफॉर्मेशन होगी तो आप ये SWOT एनालिसिस अडॉप्ट कर सकते हैं. किस तरह? और उस डाटा इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके और उसको फिर आप यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने मतलब का डाटा उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लें. ठीक है जी. यानी स्ट्रेंथ वाला स्ट्रेंथ में डाल दें, वीकनेस वाला वीकनेस में डाल दें, अपॉर्चुनिटीज वाला अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट वाला थ्रेट के पोर्शन में इंक्लूड हो जाएगा. ओके, SWOT एनालिसिस इनकम्पासेस बोथ इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स. बता चुका हूँ कि ये दोनों इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी को डील करती है ओवरऑल. यानी कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट योर इंटरनल portion of your company, you can better understand from SWOT analysis, and if you want to know about the external quality or external situation of your company, then SWOT analysis is the best technique as well. One of the most effective tools in the analysis of environmental data and information. अच्छा, एक चीज़ हम दो मेजर पोर्शन है एनालिसिस के. एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है. सो यू हैव टू डिसाइड कि विच एनालिसिस यू आर गोइंग टू फोकस ऑन. इफ यू आर डीलिंग विथ सर्विस इंडस्ट्री, आई होप यू बेटर नो क्वालिटेटिव information is much more valuable, and when you going to analyze your product industry, then quantitative measures are much more flexible to understand and easy to analyze. So आपने ये जज करना है या डिसाइड करना है कि आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ मूव करना चाहते हैं या क्वालिटेटिव. आई मेक श्योर कि आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस पता हो, और मैं इस चीज़ को अंडरस्टूड कर रहा हूँ कि आप इस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की इंफॉर्मेशन के बारे में नोन होंगे. So one of the most effective tools in the analysis of environmental data information, SWOT analysis जो है वो environmental data information का effective tool है. यानी करंट सिचुएशन में आपकी कंपनी इंडस्ट्री के अंदर कैसे ऑपरेट कर रही है, इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, उसका इफेक्टिव टूल जो है वो SWOT एनालिसिस है. तो ये इसकी वर्किंग है SWOT एनालिसिस की, और हमने इन SWOT एनालिसिस को यूज़ करके कंपैटिटिव एडवांटेज और स्ट्रेटेजिक फोकस की तरफ मूव करना है. और ये डाटा इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? जो SWOT एनालिसिस का पार्ट बनेगा सिचुएशन एनालिसिस से, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो दिस इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ एनालिसिस टूल्स. ये कुछ एनालिसिस टूल्स हैं और उनकी इफेक्टिवनेस को शेयर किया गया इधर ग्राफ की फॉर्म में. तो SWOT एनालिसिस इज 63.1% मोर इफेक्टिव देन अदर टूल्स. कंपैटिटर प्रोफाइल्स को अगर आप एनालाइज करें, यानी अपने कंपैटिटर्स की प्रोफाइल्स को आप जज करें, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है. फाइनेंशियल एनालिसिस इज आल्सो लीस्ट important than SWOT analysis. So this is the major effectiveness of analysis tools, और SWOT analysis उसमें लीड कर रहा है. So आप ये समझ सकते हैं कि how much important is SWOT analysis, and you better know कि इसकी वर्किंग और इसकी accessibility कितनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वो 63.1% जो है ऑल ओवर एक्सीड कर रहा है. So this is the basic importance of SWOT analysis. Okay जी, major benefits of SWOT analysis, यानी कि SWOT analysis के major benefits क्या हो सकते हैं या है currently. एक तो ये simple है, it's very simple. SWOT analysis requires no extensive training or technical skills to be successfully used it. यानी अगर आपने इसको सक्सेसफुली यूज़ करना है तो उसको आपके कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेक्निकल स्किल्स आपको समझने की ज़रूरत नहीं है.
The analysis needs only a comprehensive understanding of the nature of the company and the industry in which it competes. Simple. इट मीन्स कि जो एनालाइज कर रहा है, एनालिसिस्ट कर जो उसकी स्वॉट एनालिसिस पे वर्किंग कर रहा है, उसको सिर्फ कंपनी की नेचर का पता हो, यानी वो सर्विस इंडस्ट्री को फोकस कर रही है, वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री को फोकस कर रही है, ये दोनों को म्यूचुअली डील कर रहे हैं, और वो किस इंडस्ट्री में उसका एनालिसिस जो है वो उसने एनालाइज करना है, यानी प्रोडक्ट इंडस्ट्री में एनालाइज करना है, सर्विस में उसके कंपेटिटर कौन कौन है, सिर्फ ये चीज़ें उसके लिए नोन हो, और उसके लिए कोई स्पेशल टेक्निकल स्किल्स जो है वो रिक्वायर नहीं है, किसके लिए, स्वॉट एनालिसिस के लिए. सेकेंडली, लोअर कॉस्ट है, बिकॉज स्पेशलाइज ट्रेनिंग और स्किल्स नहीं चाहिए, तो स्वॉट एनालिसिस के लिए कुछ स्पेशल टीम हायर करने की ज़रूरत नहीं है, और कभी भी कंपनी में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता. ये मोस्टली CEOs, डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, इसकी प्लानिंग बना रहे होते हैं, और वो फिर अल्टीमेटली ऑपरेशनल मैनेजर जो आगे लाइन मैनेजर्स होते हैं वो उसको ऑपरेट करते हैं. तो ये इसके लिए कोई स्पेशल टेक्निकल स्किल्स नहीं रिक्वायर, इसलिए इसकी कोई कॉस्ट भी जो है वो इनक्योर नहीं होती. सो ये इसका एक और बेनिफिट है. और मोस्टली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट इसीलिए नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रॉम द हिरार्की, फ्रॉम द टॉप मैनेजरियल पोस्ट ये परफॉर्म हो रही होती है. फ्लेक्सिबल है जी. SWOT analysis can enhance the quality of an organization's strategic planning even without extensive marketing information system. ये इतना फ्लेक्सिबल है कि अगर आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी आपको डाटा कलेक्ट कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं भी है या आप उसकी कोई इतना एडवांस लेवल यूज़ नहीं कर रहे, तब भी आप स्वॉट एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको रॉ डाटा कहीं से भी कलेक्ट हो सकता है. आप अपने सेल्स पर्सन को कह सकते हैं, आप अपने सप्लायर से पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई इस तरह का टूल या MIS सिस्टम नहीं है, देन इट्स मच मोर फ्लेक्सिबल कि आप इसकी जो वर्किंग है उसको यूटिलाइज करके अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं. सो द प्रेजेंस ऑफ ए कम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन system can make repeated SWOT analysis run more smoothly and efficiently. But if you have the system, तो ये और ज़्यादा systemized हो जाएगा. It means कि if you have a software or you have such type of tool in which you gather the data of your customer or your supplier or the selling products, most selling products information, तो वो आप और ज़्यादा इसको बेहतर तौर पे implement कर सकते हैं SWOT analysis को. Integration and synthesis, this is the major point in this benefit. Okay, SWOT analysis integrate करता है, combination of information को collect करके best evaluate करने की इसमें characteristic मौजूद है. यानी it means you can analysis जो analyze करते हैं, they can integrate and synthesize diverse information both of a quantitative and a qualitative in nature. Quantitative और qualitative nature दोनों informations को इंटीग्रेशन की जो कैपेसिटी है या करेक्टरिस्टिक है वो SWOT एनालिसिस में एग्जिस्ट कर रहा होता है. यानी कि आप क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को भी यूज़ कर सकते हैं और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कैन बी अ पार्ट ऑफ SWOT एनालिसिस एज वेल. It organizes information that is widely known as well as information that has only recently been acquired or discovered. वो information जो कि all over macro level पे available है. For example, किसी इंडस्ट्री में कोई इन्वेस्टमेंट लाइक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है तो वो आप अपॉर्चुनिटी का पार्ट बना सकते हैं. और अगर वो आपके पास टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं कर रही, इट मीन्स कि आपके पास वो वीकनेस है और उस वीकनेस की वजह से आप अपॉर्चुनिटी को मार्केट में से ग्रैब नहीं कर सकते. सो ई कॉमर्स नाउ डेज आर इन. आप मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ ई कॉमर्स के ऊपर, ऑनलाइन सेलिंग के ऊपर, एंड आई गॉट अ ह्यूज पॉजिटिव साइन इन द सेलिंग ऑनलाइन प्रोसीजर्स. मुझे बहुत सारी चीज़ें नई डिस्कवर हुई हैं जो पहले नहीं थी हैं, और ई कॉमर्स को लगता था कि इट्स जस्ट अ फेक थिंग टू डू, but now I explored many new things there and I experienced wonderful opportunities on e-commerce.
और वो मैंने इंफॉर्मेशन अब कलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे किस जगह पर मेरी वीकनेसेस हैं और किस जगह पर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को मैं मेजरली अवेल कर सकता हूँ। तो स्वॉट एनालिसिस एक ऐसा टूल टेक्निक है जो कंबाइन करता है, इंटीग्रेट करता है और उसको स्मूथ करता है। सिंथेसिस को मीन्स टू मेक थिंग्स मच मोर क्लैरिफाइड। वो चीज़ें भी जो आप प्लानिंग प्रोसेस में भूल गए होते हैं तो वो स्वॉट एनालिसिस पता लग जाती है, हो इसके बारे में तो यार प्लान नहीं कर पाए, ये भी एक मेजर इशू है जिसके बारे में प्लान करना था। तो इतनी जो बेस्ट टेक्निक है वो स्वॉट एनालिसिस यूज़ करने वाले पे डिपेंड करता है कि उसको स्पेसिफिक नेचर ऑफ द बिजनेस शुड बी नोन एंड द एनवायरनमेंट ऑफ द इंडस्ट्री शुड बी वेरी वेल नोन। उसको पता हो कि वो किस इंडस्ट्री के अंदर अपनी कंपनी को फ्लोट कर रहा है और उसकी कंपनी की नेचर पर्सपेक्टिव क्या है। तो ये स्वॉट एनालिसिस का कैरेक्टरिस्टिक है। और collaboration is another advantage or a benefit of SWOT analysis. SWOT analysis fosters collaboration and open information exchange between different functional areas. By learning what their counterparts do, what they know, what they think and how they feel, the marketing analyst can solve the problems. Means के आपके डिफरेंट फंक्शनल एरियाज का कंबाइन इफेक्ट जो है वो स्वॉट एनालिसिस को चाहिए होता है। अगर ये कोलैबोरेशन होगी तो स्वॉट एनालिसिस बेस्ट डिज़ाइन हो सकता है, फोर्स करता है। स्वॉट एनालिसिस फोस्टर्स कोलैबोरेशन और इट ओपन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इसमें इन्वॉल्व होती है। और दे नो, दे थिंक, दे फील, यानी प्रेडिक्शन से लेकर इंट्यूशन से लेकर प्रैक्टिकल एक्सपोजर से लेकर तमाम इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। वो चीज़ जो आपकी इंट्यूशन में है, इंट्यूशन इन सिक्स सेंस में है कि आने वाले वक्त में ये हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन भी इसका पार्ट है। जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं नंबर्स को देख के, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स को देख के कि आने वाले 5 साल 10 साल बाद मेरी पोजीशन कंपनी की या मेरे प्रोडक्ट्स की ये हो सकती है, वो भी इंफॉर्मेशन का पार्ट है। एंड थर्ड, द थिंग यू आर फीलिंग इन इट। कुछ चीज़ें जो आपको इंटरनली फील होती हैं कि भाई हो सकता है कि ये एक डिजास्टर ऑब्जर्व हो जाए जो लास्ट ईयर ऑब्जर्व हुआ था, व्हाटसोएवर, लाइक इफ वी आर डीलिंग विद कोविड-19 नाउ, तो अनएक्सपेक्टेड मेजरमेंट्स जो हैं वो बिजनेस के अंदर देखी गई हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं जो कि कोलैप्स हो गए और वो अपने स्वॉट एनालिसिस की जो भी उनकी टेक्निक होगी जो उन्होंने कलेक्ट की होगी वो वर्थवाइल नहीं रही। सो उनको दोबारा रीऑर्गेनाइज करना, उसको दोबारा इम्प्लीमेंट करना, अपने तमाम ऑपरेशंस और प्रोडक्शन हाउसेस को, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स को, अपने सेलिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स को, एचआर डिपार्टमेंट को, तमाम को कंबाइन करना, कोलैबोरेट करना और नए तर्ज का एक स्वॉट बनाना। तो अब बजट जो अनाउंस हुआ है गवर्नमेंट का वो प्रोडक्टिव बजट है। इट मींस कि अगर 2-3 महीने यही सिचुएशन एक्सटेंड हो जाती है 2-3 महीने से, तो ये बजट जो है वर्केबल नहीं है। वो पहले ही बता चुके हैं कि ये उस सूरत में बजट बनाया गया है कि अगर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद सिचुएशन वर्थवाइल और स्टेबल हो गई कोरोना से, तब ये जो नंबर्स हैं वो अचीव हो सकते हैं। और अगर ये 2-3 महीने से एक्सटेंड करती है सिचुएशन तो ये बजट वर्थवाइल नहीं है। इट मीन्स कि वो स्वॉट एनालिसिस जो उन्होंने स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपनी डिफाइन की है वो अभी इंट्यूटिव है, फेल्ट है, फीलिंग में। और अगर वो फीलिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो वो वर्केबल हो जाएगी, अगर नहीं होती देन दे हैव टू डिजाइन इट अगेन और उसमें कुछ रद्दो बदल उनको करना पड़ेगा। सो दिस इज द बेसिक बेनिफिट ऑफ कोलैबोरेशन। आपको जो सारी स्टोरी सुनाई है टू मेक अ वर्ड कोलैबोरेशन क्लियर कि कोलैबोरेशन का स्वॉट एनालिसिस में वर्किंग क्या है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो सच सिंपल इज द स्वॉट एनालिसिस और उसके बेनिफिट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये सिंप्लिसिटी ही बेसिकली इसका ड्रॉबैक भी है, बिकॉज जितनी सिंपल टेक्निक होती है उतना जो एनालिसिस्ट है या जो रियलाइज कर रहा होता है पर्सन इज कॉल्ड एनालिसिस्ट, वो एनालिसिस जो है वो उसको इतना इजी ले लेता है कि वो अनफोकस्ड हो जाता है, पुअरली कंडक्शन होती है एनालिसिस की और वो बहुत सारी चीज़ें मिस करने लग जाता है बिकॉज इतना इजी टेक्निक को लिखने में, बनाने में, उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग में बहुत कीन ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है।
एक सीरियस नॉलेज इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है, बट उसका जो सिंप्लिसिटी टेक्निक जितनी ज़्यादा होगी, सिंपल होगी, उतना चीज़ें जो हैं वो लेस इम्पॉर्टेंट होती जाएंगी, क्योंकि वो आप फटाफट उसको इजीली फिलअप करने की कोशिश करते हैं, और जितना आसान काम हो जाएगा उतनी आपकी जो टास्क की कंसंट्रेशन है वो लूज हो जाती है। ये इसी तरह ही है जिस तरह आप कोई काम करने लगते हैं, इफ़ यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस और यू आर स्टार्टिंग सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस, तो आपको हर्डल्स फेस आती हैं, आपको हेजिटेशंस फेस करनी पड़ती हैं, आपको बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो आपके लिए फेवरेबल नहीं गुजरते। आप एक जगह इन्वेस्ट करते हैं एंड वो इन्वेस्टमेंट लूज हो जाती है, या आप उसकी हर्डल आपको आगे नहीं जाने देती, फिर आप और मोर कंसंट्रेशन से वर्क करते हैं, फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट लेते हैं, थर्ड अटैम्प्ट लेते हैं। तो जितनी अटैम्प्ट्स आप लेते जाएंगे उतनी कंसंट्रेशन आपकी उस टास्क के लिए बेहतर होती जाएगी। आप एक एग्ज़ाम देते हैं मिड टर्म का, फॉर एग्जांपल इफ़ योर एग्ज़ाम इज़ नॉट गोइंग गुड, आपके मार्क्स अच्छे डिलीवर नहीं होते, तो आप फाइनल के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मिड में बहुत अच्छे नंबर लेते हैं, वो कहते हैं इसका तो हलवा है, कुछ भी नहीं हो सकता, इसमें तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है और इसको हम अटेम्प्ट कर लेंगे। वो अल्टीमेटली जब फाइनल टर्म आता है तो उसके अंदर वो उतने अच्छे मार्क्स मिड की इक्विवेलेंट या एवरेज वाइज नहीं ले पाते, उसकी ईज में चले जाते हैं, या उसको उसकी सीरियसनेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। सेम इज़ द केस विद द SWOT एनालिसिस। As easy as technique is, much more difficult to understand the importance of the information. This is the basic core key concept that I want to tell you people. So इसमें जो SWOT analysis का जो common criticism है, जो mostly analysts face करते हैं, that it allows firms to create lists without serious consideration of the issues. बहुत सारे issues आप ऐसे डाल बैठते हैं जो कि एक्चुअल में इश्यूज नहीं है, और आप उस पर अपनी मेहनत लगाते हैं, अपनी जो एफर्ट है वो पुट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो नहीं इतने कारआमद रहती। ये ऐसे ही है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग इन अ बैंक, तो आपको ये फील होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने मोटिवेटेड नहीं है काम करने के लिए। अब मोटिवेशन ना होने के बहुत सारे वेज हैं। इन्वायरमेंट इज़ वन फैक्टर, एयर कंडीशन नहीं चल रहा, आपका इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंडली नहीं है, आपस में कोलीग्स का पॉलिटिक्स है, तो वो भी मोटिवेशन लैक करती लूज करने में उसमें एक किरदार अदा करती है। मे बी सम पे स्ट्रक्चर इज़ नॉट गुड, सम फाइनेंशियल बेनिफिट्स आर नॉट मच वर्थ वाइल, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेटेड नहीं है। सम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, सम इंट्रिंसिक फैक्टर्स। अब आपने वो इश्यूज भी लिस्ट कर दी हैं जो कि मोटिवेशन लूज करने में किरदार ही अदा नहीं कर रहे, और आप उस पर मेहनत किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि सुबह जो मॉर्निंग टाइम है वो इतना अर्ली बुलाना उनकी रूटीन को ख़राब कर देता सारे दिन की, तो अगर आप ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर रहे और आपने उनके पे बढ़ा दी है, या आपने उनको एक्सट्रिंसिक बेनिफिट गाड़ियाँ देनी शुरू कर दी हैं, या आपने उसके चिलर लगा दिए हैं, और आप ये टाइम स्केड्यूल की ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे, तो इट मीन्स यू आर नॉट सॉल्विंग द एक्चुअल इशू। तो ये बेसिक एक ड्रॉबैक है SWOT एनालिसिस का, कि आप ऐसी लिस्ट तैयार करते हैं जो सीरियस कंसिडरेशन पे बेस्ड नहीं कर रही होती। सेकेंड क्रिटिसिज्म है ऑफन बिकम्स ए स्टेराइल एकेडमिक एक्सरसाइज ऑफ क्लासिफाइंग डाटा इन इंफॉर्मेशन, यानी कि ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज रह जाती है और जिसमें आप इंफॉर्मेशन और डाटा को कलेक्ट करते हैं, दैट्स इट। यानी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन फेज जो है वो कभी आता ही नहीं है, और क्योंकि इसकी ईज इतनी होती है कि ये जस्ट फॉर नॉलेज रह जाता है SWOT एनालिसिस। यानी आपके जो सीनियर डायरेक्टर्स हैं या जिनको एनालिसिस ने प्रेजेंट करना होता है, वो सिर्फ इसको पढ़ के रख देते हैं और उसको फ्रीक्वेंटली जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो वीकन होती जाती है और SWOT एनालिसिस की एक्चुअल वर्किंग जो है वो डिमिनिश हो जाता है। So how to make a successful SWOT analysis or a productive SWOT analysis? We have to consider some points, like if we make it much more worthwhile, then we must be focused. When you are going to design the SWOT analysis to make it much more productive, these are the points that you must follow, you must observe to make a productive SWOT analysis. So stay focused.
A single broad analysis leads to meaningless generalizations. I think if you have multiple SBUs and you are going to design the SWOT analysis for a company, then it's much more difficult to analyze each SBU for a company in a single SWOT analysis. So separate analysis for each product or market combination are recommended. तो अगर आप के पास मोर देन वन SBUs हैं या एक SBU भी उसके सब कैटेगरीज हैं, तो आपको SWOT एनालिसिस उन सब कैटेगरीज और हर SBU के ऊपर डिज़ाइन करना चाहिए. दैट इज़ मच मोर स्टे फोकस्ड. आपको वो फोकस्ड प्रोडक्ट और कैटेगरी के ऊपर SWOT एनालिसिस बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा. इंस्टेड ऑफ मैक्रो लेवल पे अगर आप सिर्फ कंपनी का SWOT एनालिसिस करते हैं तो वो भी वर्थ वाइल है, बट टू मेक इट मच मोर डीपर और मेक इट मच मोर वर्थ वाइल प्रोडक्टिव, तो आपको फोकस्ड SWOT एनालिसिस फॉर द ईच प्रोडक्ट एंड मार्केट कम्बिनेशन जो है वो रिकमेंडेड है, बनाना चाहिए. सेकंड मेजर पॉइंट, सर्च एक्सटेंसिवली फॉर competitors. Although major brand competitors are the most important, the analyst must not overlook product, generic and total budget competitors. जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी कैटेगरीज, मैंने आपको बताया था कि जो competitor की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं. प्रोडक्ट कंपटीशन में जो, ठीक है, हमने वो CRV की एग्जांपल ली थी, बसेस की एग्जांपल ली थी, ट्रांसपोर्टेशन की एग्जांपल ली थी. जेनेरिक कंपटीशन में कौन से कंपेटिटर्स हैं और टोटल बजट कंपेटिटर्स कौन से हैं. लाइक हमने पेप्सी की का जो डायरेक्ट कंपेटिटर है, प्रोडक्ट कंपेटिटर है, वो कोक है. और जेनेरिक की हमने डिस्कशन की थी, टोटल बजट में वाटर आ जाता था या और जूसेस आ जाते थे. सो पोटेंशियल फ्यूचर कंपेटिटर मस्ट आल्सो बी कंसीडर्ड. जब आप कंपेटिटर्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो आपने हर प्रोडक्ट कंपेटिटर, जेनेरिक कंपेटिटर, टोटल बजट कंपेटिटर की टाइप्स को भी एनालाइज करना है कि इस कैटेगरी में जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसमें प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपेटिटर कौन सा है हमारा, जेनेरिक कंपेटिटर कौन सा है और टोटल बजट कंपेटिटर कौन सा है. तब आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट होगा जो आप SWOT एनालिसिस को इसमें डालकर या उसके अंदर राइट करके या उसको एलेबोरेट करके अपना एनालिसिस प्रोडक्टिव बना सकते हैं. And the third most important point is collaborate with other functional areas as well. क्योंकि ये combination of information है जो SWOT analysis में यूज़ होती है, तो आपको across departments कंपनी के information जो है वो collect करनी पड़ेगी. एक CEO डायरेक्टर बैठ के अपने तमाम डिपार्टमेंट्स को अगर फॉलो अप ले तो बेस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है, इंस्टेड ऑफ वन सिंगल एंटिटी अगर उसको बनाए और उसकी इंफॉर्मेशन को लिख ले एज ए ऑनर ऑफ द कंपनी, तो वो ज़्यादा वर्थवाइल नहीं होगी. सो यू हैव टू कंसीडर ईच डिपार्टमेंट एंड देयर क्रॉस फंक्शनल एरियाज टू डेवलप द क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू मार्केटिंग प्रॉब्लम्स. एंड द फोर्थ पॉइंट इज examine issues from the customer's perspective. मैं बाद दफ़ा ब्रिटिश से अमेरिकन एक्सेंट पे चला जाता हूँ, सो नेवर ट्राई सच मिस्टेक्स इन योर लाइफ, और ट्राई करें कि आप एक ही एक्सेंट पे वर्क करें. सो ये प्रॉब्लम है. सो एग्जामिन इश्यूज फ्रॉम द कस्टमर्स perspective. Customers' beliefs about the firm, its products and marketing activities are important considerations in SWOT analysis. कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड सक्सेसफुल नहीं हो सकता until unless कि आप कस्टमर के बिलीफ को अंडरस्टैंड करते हो कि वो आपकी फर्म के बारे में क्या जानती है या क्या बिलीफ रखती है. और मार्केटिंग की तो बैकबोन ही कस्टमर है, यानी कि कस्टमर की नीड, वांट, डिमांड से ही मार्केटिंग शुरू करते हैं हम. सो एग्जामिन द इश्यूज फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके टॉपिक है, आपका सब्जेक्ट है मार्केटिंग का. सो हमारे जो पर्सपेक्टिव वो मार्केटिंग है, वो उसकी कंसिडरेशन कस्टमर के पर्सपेक्टिव में नोन होगी, तो आप बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि हमें कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो हम अचीव कर सकते हैं, जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं और जिनको हम कंज्यूमर और कस्टमर बना सकते हैं अपने आने वाले वक्त में. तो इसको एग्जामिन करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है.
The views of employees and other key stakeholders must also be considered. Definitely, if your employees are not thinking positive about your company, तो वो कस्टमर्स को और कंज्यूमर्स को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे. मोस्टली ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो अपनी कंपनी को वर्थवाइल नहीं समझते और वो उसके अगेंस्ट जो है वो कंज्यूमर और कस्टमर को सलाह देते हैं या सजेशन देते हैं भाई यहाँ ना आया करो ख़रीदारी करने, ये कोई अच्छी कंपनी नहीं है. सो सच डिसहार्टिंग कस्टमर्स जो हैं वो आपकी कंपनी के लिए जो है वो हर्टफुल डिसीजंस लेंगे और इसके इश्यूज को भी आपने देखना होगा कस्टमर्स पर्सपेक्टिव में. लुक फॉर कॉजेज नॉट करेक्टरिस्टिक्स. अब हम क्या करते हैं स्वॉट एनालिसिस में कि हमने करेक्टरिस्टिक्स तो फर्म के लिख दिए कि इंटरनल ये स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं और एक्सटर्नल ये अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं जो हमारी पेप्सी को फेस हैं, जो हमारी लेज को फेस हैं. एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ कि अगर आपने पेप्सी का स्वॉट एनालिसिस बनाया, बेवरेज ड्रिंक्स का, बेवरेजेस इंडस्ट्री का, ड्रिंक्स का, तो उसका स्वॉट एनालिसिस लेज कन्फेक्शनरी आइटम या स्नैक से डिफरेंट होगा. तो आपने पेप्सी के तो डायरेक्ट कंपेटिटर्स भी ढूंढ लिए, उसका फोकस आपने स्वॉट एनालिसिस भी बना लिया, ठीक है जी. कंपेटिटर्स भी आपने फाइंड आउट कर लिया, फंक्शनल एरियाज, डिफरेंट प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, सबसे इंफॉर्मेशन भी ले ली. कस्टमर पर्सपेक्टिव भी आपने ऑब्जर्व कर लिया कि वाई आवर पेप्सी ड्रिंक इज सच हैव अ बिलीफ ऑन द कंज्यूमर. वो रिफ्रेशिंग जो कैरेक्टरिस्टिक है जो कंज्यूमर डिमांड करता है हमारी प्रोडक्ट से, वो फुलफिल हो रही है या नहीं. आपने वो इनलिस्ट कर दी स्ट्रेंथ. बट बहुत सारी जो स्ट्रेंथ या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी कॉजेज फाइंड आउट करने में हम जो है वो पीछे रह जाते हैं स्वॉट एनालिसिस में, क्योंकि उसका कॉज ढूंढना है हमने. जो स्वॉट एनालिसिस को बनाने का या डिज़ाइन करने का पर्पज़ है कि हमने सिर्फ इनलिस्ट नहीं करने कि ये स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं, इसकी कॉजेज क्या है. वाई कोका कोला इज़ सो मच गुड कंपनी इन टर्म्स ऑफ सेलिंग और फ्लेवर और सप्लाई चेन. वो जो वाई वाला क्वेश्चन है ना, उसका आंसर आपके पास होना चाहिए. वाई जिलेट इज सो मच सक्सेसफुल कि उसके कंपटीशन में कोई और प्रोडक्ट, कोई और ब्रांड, कोई और कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही. जिलेट की बात कर रहा हूँ. सो अगर आप जिलेट के कंपटीशन में देखें, देयर इज नो कंपनी दूर दूर तक, ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट कंपेटिटर भी कोई नहीं है. सो ये कॉजेज ढूंढना इसमें ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ राइटिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली. तब आपका जो स्वॉट एनालिसिस है दैट इज मच मोर प्रोडक्टिव. ओके जी. सेपरेट इंटरनल इश्यूज फ्रॉम एक्सटर्नल इश्यूज. इफ एन इशू वुड एग्जिस्ट इवन इफ द फर्म डिड नॉट एग्जिस्ट, द इशू शुड बी क्लासिफाइड एज एक्सटर्नल. In the SWOT framework, opportunities and threats exist independently of the firm and are associated with characteristics or situations present in the economic, customer, competitive, cultural, technological, political or legal environments in which the firm resides. So you have to make sure that you have to mention each and every opportunity and threat independently. यानी आपने किसी के साथ उसका कम्बिनेशन शो नहीं करना कि इसकी अपॉर्चुनिटी जो एग्जिस्ट कर रही है वो हम अवेल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें ये थ्रेट फेस हो रहा है. सो थ्रेट इज़ मच मोर डिफरेंट फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज़. अपॉर्चुनिटीज़ अवेल की जाती हैं आपकी पर्सनल इंटरनल स्ट्रेंथ की बेसिस पे, और जो थ्रेट आपको मिल रहे होते हैं या फेस करने पड़ते हैं कंपनी को, वो आपकी अपनी वीकनेसेस की वजह से फेस करने पड़ते हैं. और आप उसको ओवरकम कैसे करते हैं? अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके, अपनी वीकनेसेस को रिड्यूस करके आप उस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल, अब करंट कोविड-19 सिचुएशन में देयर इज ए 80% इंक्रीज इन ई कॉमर्स. यानी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें 80% इंक्रीज हुआ है ई कॉमर्स का विद इन दीज 3 months. कुड यू इमेजिन कि अमेजोन की सेल 75% इंक्रीज हो गई है. बहुत सारे न्यू सप्लायर्स आ गए. सब कस्टमर्स जो मोस्टली मोटर पे जाते थे, ब्रिक एंड मोटर कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो मूव कर गए ई कॉमर्स के ऊपर, और उनकी जो कमीशन रेशियो है अमेजोन की दैट इंक्रीज. इवन इफ वी टॉक अबाउट दराज, तो दराज की जो करंट सिचुएशन है वो
बहुत ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और वो बहुत अच्छा सक्सेस रेट ले रहा है. इवन अली बाबा परचेज दराज, अगर आपके नॉलेज में हो तो अली बाबा ने दराज को परचेज कर लिया, और इसके जो अब हेड हैं वो अली बाबा यानी कि जो जैक मा है वो है, और वही इसको मैनेजमेंट उन्होंने वही रहने दी है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ वही रहने दी हैं, बट अभी ऑनर चेंज हुआ है तो लाजमी बात है उसकी इम्प्रूवमेंट्स भी आएंगी. सो आपने इंटरनल इश्यूज और एक्सटर्नल इश्यूज को सेपरेटली लिखना है, मेंशन करना है, डिज़ाइन करना है, बताना है, रीजंस बतानी है, और सेपरेटली स्ट्रेंथ, सेपरेटली अपॉर्चुनिटी, सेपरेटली वीकनेसेस, सेपरेटली थ्रेट्स. आपने रीजनिंग एक दूसरे की कम्बिनेशन में अगर आप लिखेंगे देन यू विल कंफ्यूज द स्ट्रेटेजिक डिसीजन, क्योंकि आप एक को पूरा कर रहे होंगे, दूसरा घट रहा होगा. तो जब आप इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे यू आर इजी to find out the solution for each problem or issue that you write in the SWOT analysis and that you predict in the SWOT analysis. So I hope this is the better point to elaborate. You got the whole situation that how you will make SWOT analysis much more productive. So if you want to know something, so you may ask in email or WhatsApp group. तो ये चीज़ें आपको जो है वो थोड़ी सी known होनी चाहिए. So now elaborating one point individually that we discussed in the last slide is this, starting from the stay focused. Stay focused is just like, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ that बहुत सारे जो problems आते हैं वो first point में आता है, that is stay focused. It is a mistake to complete one generic SWOT analysis for the entire organization or business unit. आप एक SWOT एनालिसिस तमाम SBUs पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. सो यू हैव टू गो डीपर, यू हैव टू डिग योरसेल्फ, you have to find out each SWOT analysis for individual SBU to find out the best productive SWOT analysis for the whole company. So when we say SWOT analysis, we mean SWOT analysis. It means that you have to make a combination of SWOT analysis for each SBU or the working of each SBU. And the second point that we discussed earlier is basically the search extensively for competitors. Information on competitor is an important aspect of a SWOT analysis, so that the information you collect for the competitors is an important aspect. Because this is the major area where you are going to target, और ये वो लोग हैं जिनके लिए आप स्ट्रेटजीज बना रहे हैं. बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो इन कंपैटिटर्स के देखते हुए बनता है, बिकॉज आपने इनको तोड़ते हुए इनको आगे अपनी कंपनी को इनको हटा कर आगे लेकर आना है. सो इसलिए इसका वर्ड एक्सटेंसिवली इसके साथ यूज़ हुआ है. That extensively should be done. Information on competitors should be extensively collected. Look for all 4 types of competition जो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. ब्रांड competitors, product competitors, generic competitors, total budget competitors. इन competitors के बारे में आपने information जो है वो collect करनी ज़रूरी है. Next point is collaborate with other functional areas. So as I earlier discussed, information generated from the SWOT analysis can be shared across functional areas. वो discuss होते हैं different functional areas के managers के साथ, line managers के साथ. SWOT analysis can generate communication between managers that ordinarily wouldn't communicate, creates an environment for creativity and innovation. So SWOT analysis आपको force करता है कि आप कम्युनिकेशन को बिल्ड अप करें, और ये ऐसे ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन नहीं होती है, स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन होती है, और इट क्रिएट्स इन्वायरमेंट क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, और आपके मैनेजर्स को क्रिएटिव सोचने पे मजबूर करती है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जामिन इश्यूज फ्रॉम द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. द एनालिसिस should know or ask such questions. What do customers and non-customers, जिनको हम prospect भी कहते हैं, believe about us as a company, यानी कि हमें as a company उसका belief, image उसके mind में customer के क्या है. What do customers and non-customers think of our product quality,
customer service, price, overall value, convenience, and promotional messages in comparison to our competitors. आपके कंपटीशन में जो और कंपनीज, ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स, SBUs वर्केबल है, आपकी कंपनी के बारे में कंज्यूमर क्या सोच रहा है, इमेज क्या है, परसेप्शन क्या है, और क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो आपके प्रोडक्ट ब्रांड के एज कम्पेयर टू कंपेटिटर्स कंज्यूमर के माइंड में है. व्हाट इज़ द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ दीज इश्यूज एज कस्टमर सी दैम, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कस्टमर कंज्यूमर परचेज की सेंस में कैसे करता है. मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ गुची और प्राडा और सच ब्रांड्स जो कि एक्सपेंसिव अपैरल बनाते हैं, वो एक एलीट इमेज रखते हैं अपने माइंड में, और उनके जो कस्टमर टारगेट कंज्यूमर है, हम जैसे वो अप्रोच भी नहीं करेंगे. इवन हम कभी उसकी वेबसाइट भी ओपन करके नहीं देखते कि उनका नया कौन सा अपैरल है जो कि लॉन्च हुआ है गुची का या प्राडा का, क्योंकि हम उस अप्रोच में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे एज ए कस्टमर माइंड में सिर्फ अपने लोकल ब्रांड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो हमने कभी इंटरनेशनल ब्रांड्स को परसू करने की कोशिश नहीं की. बट देयर आर सम कस्टमर्स इन पाकिस्तान एज वेल जो कि उसकी अप्रोच रखते हैं, और उनके माइंड परसेप्शन में जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने ट्रिप्स करते हैं, और उनके लिए वो प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा फिजिबल हैं बिकॉज दे हैव द पेइंग कैपेसिटी. सो वो बिल्कुल ओपन करते होंगे, और उनके नए आने वाले जो न्यू अराइवल्स अपीयरल हैं उसके ऊपर उनकी बिल्कुल नज़र होगी. सो इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर कि वो कस्टमर उसको कैसे देख रहा है आपकी कंपनी और ब्रांड के इमेज को, ये बहुत ज़रूरी है इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. टेकिंग द कस्टमर पर्सपेक्टिव इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ ए वेल डन स्वॉट एनालिसिस. और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम कर किस वजह से रहे हैं, कस्टमर्स की वजह से, और मार्केटिंग स्टार्टिंग पॉइंट ही कस्टमर और कंज्यूमर है. यानी यू आर गोइंग टू fulfill the demand, need and want of your consumer, and you must know these three perspectives. और हम ये किस तरह कर रहे हैं, और कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं, और किस तरह कर रहे हैं, बाय एनालाइजिंग द कंपेटिटर्स. तो की कोर एरियाज कस्टमर्स और कंपेटिटर्स हैं स्ट्रेटजी बनाते हुए या स्वॉट एनालिसिस को डिज़ाइन करते हुए. तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए. ये breaking down managerial glitches into customer oriented strength and weaknesses. अब एक कंपनी है वो कहती है जी वी आर एन एस्टेब्लिश्ड फर्म. हमें एक ऐसी फर्म है जो बड़ी पुरानी है और ओल्ड वर्किंग में है, जैसे वो लिखा होता है सिंस 1950. तो उसकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ क्या है जी, वो सेल्स सर्विस में स्टेबल हो चुकी होती है, एक्सपीरियंस्ड होती है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं. लेकिन उसकी वीकनेसेस पोटेंशियल क्या हो सकती हैं कि वो ओल्ड फैशन होती है, पुराने तर्ज पे काम कर रही होती है. अगर आपको याद हो तो नोकिया की बेस्ट एग्जांपल इस पे फिट होती है, या निराला स्वीट्स लाहौर में होता था. तो वो अपनी ओल्ड फैशन मिठाई की वजह से फेमस था, लेकिन वो चेंज नहीं कर पाया अपने आप को, अपडेट नहीं कर पाया, और उसके कुछ एक्सपेंसेस इस तरह के हो गए और कुछ डिज़ास्टर ऐसे हो गए बैंकरप्सी के जो वो लैक कर गया. एंड सेम इज़ द केस विद द नोकिया कि वो उसकी अपडेशन ओल्ड फैशन नेचर उसको ले डूबी, जिसकी वजह से वो इनफ्लेक्सिबल था, फ्लेक्सिबल नहीं हो पाया, वीक इनोवेशन थी, और वो पोटेंशियल वीकनेसेस उसकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ को खा गई. तो जो कंपनीज ये कहती हैं वी आर एन एस्टैब्लिश्ड ओल्ड फर्म्स लाइक वी आर वर्किंग फ्रॉम 1950s, तो देयर आर चांसेस कि उनके ये पोटेंशियल वीकनेसेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे. सो मेक श्योर कि आपको एक स्टेटमेंट बनाने के लिए उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है वो पता होनी चाहिए. अगर आप एक कंपनी है तो आपकी हर कंपनी की कोई ना कोई वीकनेसेस और स्ट्रेंथ एग्जिस्ट ज़रूर करती हैं, यू मस्ट नो. और आपको उस कंपेटिटर की वही वीकनेसेस पकड़नी है जिसकी बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेंथ को लेकर उसको टारगेट करेंगे. और इसी तरह एक कंपनी है जो कहती है जी वी आर ए लार्ज सप्लायर, तो उसकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ क्या हो सकती है कि उसकी प्रोडक्ट लाइन कम्प्रीहेंसिव हो, टेक्निकल एक्सपर्टीज उसके पास ज़्यादा हो, लॉन्गेविटी ज़्यादा देर टाइम तक वो सरवाइव कर सके, क्योंकि उसके पास जो प्रोडक्ट होगी वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगी. तो इस तरह कोरोना वायरस की सिचुएशन है तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक है, बट लार्ज सप्लायर जो है वो उसका फ़ायदा उठाकर
अपनी प्रोडक्ट्स को साल 2 साल तक सेल कर सकता है। स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बन चुकी होगी, बट पोटेंशियल वीकनेसेस आर ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल, फोकस्ड ओनली इन लार्ज अकाउंट्स, इम्पर्सनल एंड वीक कस्टमर सर्विस, और उसका सिर्फ काम सप्लाई करना है, तो कस्टमर सर्विस की तरफ उसकी तवज्जो नहीं होगी। सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल कि जो कंपनीज अपने आप को समझ रही होती हैं और उसकी बैक एंड में वीकनेसेस, एब्सोल्युटली वीकनेसेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं, इसकी एग्जांपल डिस्कस की गई है कि व्हाट आर द मेजर वीकनेसेस मे दोज कंपनी हैज who say such glitches like we are an established firm, we are large supplier, we have a comprehensive product line, we are the industry standard. So I hope you will get this whole comparison and the productive SWOT analysis, how we can make a productive SWOT analysis. So moving towards the next point, that is basically look for causes not characteristics. Causes for each issue in a SWOT analysis can often be found in the firms and competitors' resources. Resources के अंदर causes होते हैं, और resources कौन कौन से हैं? Financial resources की वजह से SWOT analysis के strength बन सकती है, उनके पास capital बहुत अच्छा है, intellectuality बहुत अच्छी है, legal authorities इस तरह की हैं कि वो operate कर सकते हैं, ह्यूमन HR रिसोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज और उसका थीम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वेल मैनेज्ड हैं और वो कंपटीशन में अपने कस्टमर्स को बेस्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं। इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज, रिलेशनल रिसोर्सेज और रेप्यूटेशनल रिसोर्सेज। सो ये वो रिसोर्सेज हैं जिनकी बेसिस के ऊपर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के को इनलिस्ट किया जाता है। यानी कि सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स पे नहीं जाना, आपने रिसोर्सेज देखने हैं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दोज करेक्टरिस्टिक्स, रीजंस। तो आंसर ऑफ वाई जो मैं पहले बताया था कि आपको वाई पता होना चाहिए कि वाई जिलेट इज सक्सेसफुल। उसका फाइनेंशियल रिसोर्स उसका स्ट्रॉन्ग है, इंटेलेक्चुअल सोर्स उसका स्ट्रॉन्ग है, लीगल, ह्यूमन, ऑर्गेनाइजेशनल, इंफॉर्मेशनल, रिलेशनल या रेप्यूटेशनल। सो टू आंसर द वाई क्वेश्चन will best give you the direction for moving for the productive SWOT analysis, और आप अपने competitor को समझ पाएंगे। Separate internal from external issues, हम पहले भी बता चुका हूँ कि हम internal और external issues को separately लिखेंगे तो या उसको डिज़ाइन करेंगे तो इट्स बेटर कि हम उसका solution जो है वो separately बना पाएँ। Failure to understand the difference between internal and external issues is one of the major reasons for poorly conducted SWOT analysis. तो Socratic advice है कि जी know thyself, यानी आपको अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में पता हो, कस्टमर्स के बारे में पता हो, कंपेटिटर्स के बारे में पता हो और इन्वायरमेंट के बारे में पता हो, बट इंटरनल एक्सटर्नल सेपरेटली। ठीक है जी, तो सेपरेटली इश्यूज, इंटरनल इश्यूज सेपरेटली डिस्कस होंगे और एक्सटर्नल इश्यूज सेपरेटली डिस्कस होंगे SWOT एनालिसिस में, ताकि आप बेस्ट SWOT एनालिसिस जो है वो डिज़ाइन कर सकें। सो हाउ वी कैन मेक द SWOT ड्रिवन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जिसकी वजह से हम ये SWOT एनालिसिस के बेनिफिट्स पढ़ रहे थे, और हाउ वी कैन डेवलप द प्रोडक्टिव SWOT एनालिसिस, इसके पॉइंट्स को डिस्कस किया गया कि हम SWOT ड्रिवन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसे बना सकते हैं। अब ये वर्किंग है, प्रैक्टिकल वर्किंग की तरफ हम मूव कर रहे हैं। 4 issues the marketing managers must recognize. Number 1, the assessment of strength and weakness should look beyond products and resources to examine processes that meet customer needs. So if we talk about the marketing that we earlier discussed, that the whole marketing revolves around the customer, तो आपने assessment of strength और weakness अपने as a analyst नहीं सोचनी, should look beyond product और resources से भी आगे चले जाना है। कहाँ तक जाना है कि कस्टमर आपके अंदर कौन सी weaknesses और strength ऑब्जर्व कर रहा है, और उसके फिर आपने सोल्यूशन ऑब्जर्व करने, ऑफर सॉल्यूशंस टू कस्टमर प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। जिस तरह के फॉर एग्जांपल मैंने दराज के अंदर एक प्रॉब्लम देखा कि उसका जो कॉन्टैक्ट मेथड है वो कोई इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है। मींस कि अगर मैं एज ए सेलर
वहाँ पे कोई प्रॉब्लम अराइज होती है या मैं डिलीवर नहीं कर पाता, जिस तरह सैटरडे संडे जो है वो ऑफ डेज हैं, आजकल कोरोना वायरस की वजह से कम्प्लीटली शट डाउन है, तो और मुझे ऑर्डर आ गया है फ्राइडे नाइट को, तो सैटरडे संडे के अंदर मैं वो डिलीवर नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू द लॉकडाउन, लेकिन उनका टाइमर चल रहा है कि आपने अभी तक डिलीवरी जो है वो प्रोसीड नहीं की, कस्टमर को शिप नहीं की प्रोडक्ट। सो मुझे अब उनको कांटेक्ट करके ये बताना है या पूछना है कि मैं इस लॉकडाउन के अंदर क्योंकि सर्विसेज नहीं दे सकता, तो व्हाट मे बी द सॉल्यूशंस, और क्या आप कस्टमर को या मेरे परचेज़र को ये बता दें कि भी अभी डिलीवरी जो है वो डिले हो सकती है। तो उनका कोई कांटेक्ट मेथड नहीं, उन्होंने सिर्फ एक सिंपल फ़ोन नंबर दिया हुआ है कि आप इस फ़ोन नंबर पे जो है वो रब्ता करें, और वो भी उनके कुछ स्केड्यूल टाइमिंग्स हैं जिसके अंदर वो सपोर्ट देते हैं, अदरवाइज़ वो सपोर्ट अदर टाइम्स पे नहीं देते। सो जो कस्टमर की थिंकिंग है आपकी कंपनी की तरफ, उसकी असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस करनी ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड होगी एज कम्पेयर टू एज ए CEO, डायरेक्टर और एज ए एम्प्लॉयज़ एनालिसिस्ट। अगर आप सोचने बैठे कि जी मेरी कंपनी में तो ये वीकनेस है और मेरी तो वो तो मेरा ख्याल है कोई बंडल ऑफ वीकनेसेस यू विल फाइंड एंड यू विल लेस फाइंड द अपॉर्चुनिटीज़। तो इन टर्म्स ऑफ कस्टमर पर्सपेक्टिव, अगर आप उस कंपनी के कस्टमर हो तो आपको क्या क्या वीकनेसेस फील हो सकती हैं, इस तरह के माइंडसेट के साथ आपको वो एनालाइज करना पड़ेगा और फिर आपको उसके सोल्यूशन जो है वो बेस्ट मिलेंगे। सो ऑफर सोल्यूशंस टू कस्टमर प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो आप कस्टमर के सोल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ना कि प्रोडक्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो अगर कस्टमर को आपकी पैकेजिंग में से स्मेल आ रही है, यानी इफ़ यू आर पैकेजिंग सम फूड आइटम और वो जब फूड उसमें से निकालता है पैकेजिंग में से, तो उसमें से उस प्लास्टिक की या उस गत्ते की जो है वो स्मेल भर जाती है, तो वो कस्टमर की फीलिंग जो है वो आपकी प्रोडक्ट की वीकनेस शो कर रही है, तो आपको उसको फिर चेंज करना है। बट अगर कस्टमर की उसकी फ्रेगरेंस में कोई चेंजिंग नहीं फील कर रहा और आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग एग्जैक्टली राइट है, तो आप प्रोडक्ट को मेंड बैठे बैठे नहीं करते, बिकॉज इट इनक्योर्स अ कॉस्ट। सो कस्टमर पर्सपेक्टिव, आप कस्टमर को सोल्यूशन दे रहे होते हैं, ना कि प्रोडक्ट्स को और अपनी कंपनी को। अचीविंग गोल्स and objectives depends on transforming strengths into capabilities by matching them with opportunities। ये बहुत आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है जो मैं बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करते हैं अपनी टू गेट और ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम द मार्केट। मेरे पास 10,000 रुपये या 1 लाख रुपीज़ होंगे, मैं प्रोडक्ट का पैक 10 प्रोडक्ट्स या 20 प्रोडक्ट ख़रीद के रखूँगा तो मैं बेचने के लिए ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, ना कि मैं अगर उनको क्रेडिट पे ले लूँ, मुझे फिर उधर से पैसे कब आएँ और कब मैं उसको दूँ, तो वो स्ट्रेंथ नहीं कंसीडर होगी। अच्छा, इसमें 2 वर्ड हैं जो समझने वाले हैं। उसने कहा है कि स्ट्रेंथ को कैपेबिलिटीज़ में कन्वर्ट करें, एंड यू बेटर अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कैपेबिलिटी। तो अगर आपको नहीं है समझ आता तो उसको परसू करें। मैं इसकी लॉजिक बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई काम करने की स्ट्रेंथ है, पावर है, आप इन्वेस्ट, आपके पास इतनी अमाउंट है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कर सकते में करने की जो कैपेबिलिटी सलाहियत है, यानी कि सेल्फ एफिकेसी जो है, एक काम में मैं कर सकता हूँ, मैं पीसी चला सकता हूँ, बट उसको चलाने की जो कैपेबिलिटी, यानी मुझे टाइपिंग स्पीड उसकी तेज़ रखनी पड़ेगी या मुझे उसको समझना पड़ेगा। चला सकता हूँ इज़ नॉट सफिशेंट, चलाना है इज़ ए कैपेबिलिटी। सो इफ़ आई एम ये इसकी मिसाल ऐसी ही है कि इफ़ यू गो इन अ जिम, जी मैं इतना जो है वो वेट उठा सकता हूँ, लेकिन उस उठाने की कैपेबिलिटी कितनी देर तक आप उठा सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द कैपेबिलिटी। तो वो कैपेबिलिटी को आपने स्ट्रेंथ को कैपेबिलिटीज़ में कन्वर्ट करना है, और कैपेबिलिटी ऐसे ही है जिसका स्ट्रेंथ का इनिशिएटिव हो, यानी स्ट्रेंथ मौजूद है और आपने कैपेबिलिटी लगाकर, सलाहियत लगाकर उस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके अपॉर्चुनिटी मार्केट में से उठा लेनी है, ले लेनी है। आई होप कि ये मैं 2 वर्ड्स जो है वो बेस्ट एलैबोरेट कर पाया हूँ। आपको अगर ये समझना है तो उसकी डिक्शनरी मीनिंग में ज़रूर परसू कीजिएगा कि स्ट्रेंथ को कैपेबिलिटीज़ में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है। वीकनेसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेंथ विद स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। और आपने अगर वीकनेसेस को
स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है तो आपको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यानी इफ़ यूर HR इज़ बिलो एवरेज तो आपको उसकी स्किल्स और इंटेलेक्चुअलिटी को बढ़ाने के लिए उस पर पैसा लगाना पड़ेगा। इफ़ वी हैव सच फैकल्टी, NCB है सच फैकल्टी, तो जो लोअर फैकल्टी है, मैंने ऐसे PhDs की सीरीज़ भी कलेक्ट की हैं जिनका एक्सपीरियंस टीचिंग में ज़ीरो है, मतलब वो पढ़ते ही चले गए हैं और उनका कोई लेक्चर का डिलीवरी का कोई भी एक्सपोजर या एक्सपीरियंस नहीं है। सो एंड दे डिमांड वेरी लो। लाजिम बात है कि वो अपनी स्किल्स के बारे में जानते हैं तो उनकी जो कोट होता है उनकी सैलरी का वो बड़ा लो होता है, लेकिन जो फैकल्टी मेंबर्स एक्सपीरियंस्ड और एक्सपोजर रख रहे होते हैं वो अपनी सैलरी की जो कोटेशन है वो भी ज़्यादा डिमांड करते हैं। सो जितनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आप लगाएंगे टू ओवरकम द वीकनेसेस, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएंगी, और जब स्ट्रेंथ बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली थ्रेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटीज़, और आप उन स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए स्ट्रेंथ इंप्लीमेंट करेंगे और थ्रेट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। वीकनेसेस दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड become limitations which must be minimized if obvious or meaningful to customers। कुछ ऐसी वीकनेसेस होती हैं जिनको आप ओवरकम नहीं कर सकते, तो वो लिमिटेशंस बन जाती हैं। ठीक है जी, यानी कि वो फॉर एवर के लिए या वो कांस्टेंट लिमिटेशंस जो हैं वो कंसीडर होती हैं, तो उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जब ये इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज थे तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही थी फैसलाबाद में, तो वो जो इश्यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे वो वीकनेस क्रिएट कर रहे थे इंटरनेशनल इंडस्ट्री के अंदर, यानी हमारी जो चीज़ें थी वो एक्सपेंसिव जा रही थी या हम ऑर्डर डिलीवर ऑन टाइम नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज। तो उसको मिनिमाइज फिर किया गया, किस तरह बाय सेकेंडरी सोर्सेज को यूज़ करते हुए, कुछ जनरेटर या कोई हब लगाकर या कोई सोलर सिस्टम लगाकर। तो सच टाइप ऑफ वीकनेसेस वो लिमिटेशंस बन जाती हैं और उनको फिर आप मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाता है। सो वीकनेसेस दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बिकम लिमिटेशंस व्हिच मस्ट बी मिनिमाइज्ड इफ ऑब्वियस और मीनिंगफुल टू customers। So I hope you got this topic SWOT driven strategic planning, और हम किस तरह इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये 4 बेसिक मार्केटिंग मैनेजर अगर आप हैं तो ये 4 पॉइंट ज़रूर ज़हन में रखें टू डिज़ाइन द बेस्ट SWOT एनालिसिस। और ये SWOT एनालिसिस की हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एक अरे ऑफ segments या quadrants होता है। SWOT matrix a 4-cell array used to categorize information at the conclusion of a SWOT analysis। अब आप एक array बनाते हैं जो अक्सर आप बुक्स में भी देखते हैं। should be based on customer perceptions not the perceptions of the analysis। जो मैं पहले पिछले स्लाइड में डिस्कस कर रहा था कि आपने कस्टमर पर्सपेक्टिव से वीकनेसेस स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करनी है, ना कि एनालिसिस्ट अपने तौर पे सोच के या CEO डायरेक्टर अपने तौर पे सोच कर वो उसके जो सेगमेंट्स हैं उसको फुलफिल करे। एलिमेंट्स विद द हाईएस्ट टोटल रेटिंग्स शुड हैव द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। और जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटिंग आप मेंशन करेंगे वो लाजमी बात है उसका इन्फ्लुएंस आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में भी शो हो रहा होगा। फोकस ऑन कंपैरेटिव एडवांटेजेस बाय मैचिंग स्ट्रेंथ्स विद अपॉर्चुनिटीज़। और ये पूरा जो चैप्टर है जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये कंपैरेटिव एडवांटेज गेन करने के लिए हम ये सीखेंगे कि इस कंपैरेटिव एडवांटेज इसमें कैसे गेन किया जाता है। सो आपका ओवरऑल जो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ की मैचिंग है वो कंपैरेटिव एडवांटेज डिलीवर करती है। यानी अगर आप देखते हैं कि कोरोना वायरस इज़ इन मार्केट राइट नाउ एंड वी आर अनएबल टू सेल from door to door, then you have to establish this is the opportunity for you to reduce your expenses, to downsize your employees. If I am a practical businessman, so you can downsize your employees, you can reduce your showrooms or shops, and you go for the online selling perspective, and you have such a website or portal in which customer came and order your products। सो ये स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने से यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेंथ, एग्जैक्ट स्ट्रेंथ और परफेक्ट स्ट्रेंथ
उस अपॉर्चुनिटी पे लगाई जाए ताकि बेस्ट अवेलेबिलिटी अवेल हो सके वो अपॉर्चुनिटी, तो वो आपका कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाता है। सो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह की लगती है जी, जो हम देखते आ रहे हैं। और स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज़, वीकनेसेस, थ्रेट्स, ये इंटरनल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इंटरनली मैयर होती हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो हैं वो एक्सटर्नली मैयर होते हैं। सो वीकनेसेस जो लिमिटेशंस बन जाती हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उनको मिनिमाइज और अवॉइड किया जाता है, और अगर आप उस पर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लगाएं तो वही वीकनेसेस जो है वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अगर आपके पास स्ट्रेंथ वो अवेल हो गई है तो आप उसको टारगेट करें अपॉर्चुनिटीज़ को, और उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके अपने कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर लें। और थ्रेट्स को जितना मिनिमाइज कर सकें उतना मिनिमाइज करें, और थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करें। कैसे? बाय यूटिलाइजिंग द बेस्ट स्ट्रेंथ्स टू रिड्यूस दीज थ्रेट्स। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ करते हैं तो थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए, और वही थ्रेट्स जो है वो बाद में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं। सो दिस इज़ द होल SWOT एनालिसिस टॉपिक दैट वी डिस्कस टुडे। आई होप आप लोग इसका रिव्यू लिख के मुझे ईमेल करेंगे मेरे ईमेल आईडी पे, और प्लीज़ इसको कीनली ऑब्जर्व करें। आपके लास्ट लेक्चर में से रिव्यूज़ काफ़ी लोगों के नहीं आए, और मैं उसके जो है वो पॉइंट्स को मैयर कर रहा हूँ कि वो रिव्यूज़ जो हैं वो क्यों नहीं आ रहे। और आप लोग हर जो लेक्चर है उसका रिव्यू मुझे बगैर कहे प्लीज़ भेजा करें मेरे ईमेल आईडी पे, सो आई मेक श्योर कि भाई आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो रही है। सो इफ़ यू नीड टू नो समथिंग प्लीज़ आस्क मी। दिस इज़ द रिकॉर्डेड लेक्चर, आई एम नॉट फिजिकली अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, सो आई नीड अ फीडबैक फ्रॉम यू पीपल। तो आपने ये चीज़ें ज़रूर ऑब्ज़र्व करनी है जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, और प्रैक्टिकली इसको आप यूज़ भी कर रहे हैं, करते होंगे या करना चाहते हैं अगर अपने बिजनेस में, तो ज़रूर करें। बिकॉज आई एम डूइंग राइट नाउ एंड आई एम फीलिंग द प्रैक्टिकल एक्सपोजर। दो मैं ऑलरेडी ही काफ़ी बिजनेसेस में इन्वॉल्व रहा हूँ, बट करंटली ई कॉमर्स इज़ न्यू फॉर मी, सो इसलिए ये काफ़ी न्यू चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं। तो आप लोग भी इसमें ज़रूर इंटरेस्ट लें, और मुझे हर लेक्चर का प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करें, रिव्यू लिख कर दिया करें, वो हैंड रिटन हो या MS वर्ड में हो, लेकिन प्लीज़ मुझे ईमेल ज़रूर सेंड किया करें अपने रिव्यू के बारे में। और आपके मिड के जो पेपर्स हैं, जो रिज़ल्ट्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं कंपाइल कर रहा हूँ, और होपफुली कि वो जल्द आपको मिल जाएंगे। सेकेंडली, जो आपकी प्रेजेंटेशंस हैं जो हमने डिसाइड की हैं वो हम ज़रूर प्लान करेंगे अपकमिंग वीक में, और हम उसको स्टार्ट कर देंगे डिलीवरी करना। तो आप लोग प्लीज़ प्रिपेयर करना शुरू करें, मैं अपकमिंग वीक में उसका कोई स्केड्यूल तैयार करके आपसे शेयर कर लूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू एंड हैव अ फन इन दिस समर। और प्लीज़ अपनी जो हेल्थ है उसको मेक श्योर करें, अपनी फैमिली की हेल्थ को मेक श्योर करें। स्टे हाइड्रेटेड and stay safe at home. Thank you very much. So nice of you. Stay blessed.